जिग्ना मैडम नमस्ते। नमस्ते शुक्ला सर। कैसे हो? कैसे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसी क्या हैं आप? एग्जाम हो गया? नहीं मैडम, एक्चुअल में पिछले 3 महीने से थोड़ा मैं पेरेंट्स के हेल्थ के इशू में डिस्टर्ब था जो है। ओके तो ओके। इसके लिए कोई एग्जाम नहीं, कोई वो नहीं, सब अब फरवरी से तैयारी करूंगा ओके, विश यू ऑल द उसके बाद। बेस्ट। विश यू ऑल थैंक द यू। बेस्ट। आपका कब एग्जाम है जिग्ना मैडम? मैं जुलाई के आसपास। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, थैंक यू सर। ओके। नायर मैडम नमस्ते। नमस्ते शुक्ला जी, नमस्ते। हम जस्ट 2-3 मिनट वेट करते हैं, अगर कोई और ज्वाइन कर रहा है तो गुड फिर हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग मैम। Good evening. Good evening, Simati. Good evening, everyone. सीमा जी 2-3 मिनट वेट कर लेते फिर हम स्टार्ट करें। रेनू मैडम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बस बढ़िया सर। चलिए। स्टार्ट करते हैं सीमा जी। स्टार्ट करें।
Okay, Roshni. Namaste, everyone. A very good evening to all of you. I'm Seema Nair from Arambh Yoga Institute, and I'll be your host for today's session. So today, first, let me introduce, myself. My name is Seema. I am a Yoga Wellness Level 2 instructor, and currently I'm pursuing my Yoga Master Level 4 certification from Arambh Yoga Institute. Today I'll be your host. So in between the session, I'll be posting some links like feedback links and link for registration for any other upcoming camps, workshops. So please do feel free in between to go and give us your feedback as well. So before we begin today's session, I would like to introduce you to Arambh Yoga Institute. Arambh Yoga Institute is located in Kandivali, Mumbai, and it is an ISO certified institution that follows international standard for quality management. We are accredited by Yoga Certification Board, Ayush, Government of India, and we operate as an educational branch of Arambh Yoga Foundation, which is a public charitable trust registered under Bombay Charitable Trust Act. Arambh Yoga Institute is a well-trusted yoga institute in Mumbai, in India. We aim to enlighten the world, especially the young aspirants, by providing high-quality education, training, and guidance in the field of yoga as a profession. We also help them to discover the true essence of yoga and its benefit by applying yogic principles and practices in daily life. So this leads us to a better and balanced life, in not not only health wise but also various other aspects of life, and it creates a more positive and harmonious society. Now I'd like to introduce you to our guru, Dr. Sushma Maurya. Dr. Sushma Maurya is the founder and director of Arambh Yoga Institute. She has an extensive 2 decades of experience in teaching and learning yoga. She serves as a lead examiner for Yoga Certification Board Ayush and is currently assistant professor at Swanand Yoga Vidya Gurukul, Latur. Dr. Maurya has co-compiled Yoga Teacher and Evaluation YCB Level 3 and Yoga Master YCB Level 4 textbooks, thus contributing significantly to the academic field of yoga. Dr. Maurya is also a UGC NET qualified in yoga and holds a master's degree in yoga, along with a postgraduate diploma in yoga science and Sankhya Yoga Darshan. She's also certified Ayush level 2 and 3, achieving the prestigious Yoga Master level 4 qualification. Beyond yoga, Dr. Maurya has also earned a diploma and master's degree in education, and she's a black belt in karate as well. Her achievements have been recognized with the Yoga Shri Award by the Indian Young Olympian Federation and the Patanjali College of Yoga and Research Center. She collaborates with renowned institutes, corporates, schools, NGOs, gymkhanas, and clubs, spreading her expertise and passion for yoga across diverse platforms. We feel privileged to embark on our yoga journey under the guidance of our Guru, Dr. Sushma Maurya. So this was all about Arambh Yoga Institute and Dr. Sushma Maurya. Now I would like to introduce you to today's presenter for back pain relief management workshop, Roshni Rote. Roshni is a passionate young yoga aspirant from Navi Mumbai and is here with us today. It's worth mentioning that she is a yoga professional certified by Ayush Ministry, Government of India, and is already a YCB level 2 qualified. Currently, she's further advancing her expertise by pursuing yoga level 4 master certification. She has 4 years of experience in yoga. Roshni has been dedicated to exploring and sharing how yoga can help relieve pain and improve overall well-being. So let's give a warm welcome to Roshni as she takes us through the valuable practical
practical session, before which she will take us through some theoretical aspects of back pain. So over to you, Roshni. Thank you so much, Seema ji, for lovely introduction. Thank you. Namaste everyone. हम सेशन शुरू करने से पहले प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन इंटरेस्टेड है आपको मतलब थ्योरी पार्ट सुनने में, बैक पेन को जानने में। हम स्टार्ट करते हैं प्रेयर से। कौन से भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाओ, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सुखासन। आपके दोनों हाथ नी के ऊपर, बैक एंड नेक स्ट्रेट, eyes closed, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. 3 ओमकार chanting prayer के साथ। Breathe in, O. Breathe in, O. Breathe in, O. ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युमामृतङ्गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Lead us from untruth to truth, from darkness to light, from mortality to immortality. Om, peace, peace, peace. Now rub your palm, stop your eyes, remove your hands and gently open your eyes. Namaste everyone. तो आज का टॉपिक है बैक पेन। Light will lie in music, music will lie in light. You born to be free. Bluetooth mode. म्यूट कर Connected. दीजिए। तो आज का टॉपिक है बैक पेन। हम बैक पेन के बारे में आज जानेंगे कि बैक पेन क्या होता है और बैक पेन के सिम्टम्स क्या क्या है, फिर बैक पेन के कॉजेस क्या है, हमें मतलब बैक पेन होता है तो हमें डॉक्टर के पास कब जाना है, फिर बैक पेन के कुछ टाइप्स देखेंगे हम, फिर कुछ कॉजेस में हम कुछ डिटेल देखने वाले हैं कि जैसे साइटिका है, फिर स्पाइनल स्टेनोसिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये सब हम सब लोग आज डिटेल में जानने वाले हैं। फिर उसके बाद योगिक प्रैक्टिसेस में सूक्ष्म व्यायाम देखेंगे, फिर आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन टेक्निक। आज सब हम उसके बारे में जान लेते हैं। मैं आपको पीपीटी शेयर करती हूँ। सबको मेरी पीपीटी विजिबल है? तो हमारा कैंप आज से शुरू होके फ्राइडे तक चलने वाला है। तो मेरे बारे में थोड़ा जो अभी सीमा जी ने आप सबको बताया। भी सेशन से पहले हमने प्रेयर से स्टार्ट किया ना। नेक्स्ट है प्रेयर का इम्पोर्टेंस। अभी प्रेयर करना क्यों इम्पोर्टेंट है, प्रेयर के बेनिफिट्स क्या है वो हम देख लेते हैं।
प्रेयर करने से क्या होता है, जब हम प्रेयर करते हैं तो हमारे और गॉड के बीच एक पॉजिटिव रिलेशन बनता है प्रेयर करने से। और ये प्रेयर से हमारा स्ट्रेस एंजाइटी कम होता है, ये हमारे मन को शांत करता है, ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है प्रेयर। और हमारे एटीट्यूड में इम्प्रूव मतलब हमारा एटीट्यूड इम्प्रूव होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा बनता है। फिर जैसे योगा प्रैक्टिसेस है, हम योगा आसन करते हैं, तो उसके पहले ना जब हम प्रेयर करते हैं, तो अभी हमने प्रेयर से स्टार्ट किया, तो हम प्रेयर क्यों मतलब योगा सेशन करने से पहले हम प्रेयर क्यों करते हैं, ताकि हमारे प्रेयर करने से हमारे माइंड बॉडी और सोल जो है ना वो प्रिपेयर होता है अपकमिंग योगा प्रैक्टिसेस के लिए। इसलिए हम प्रेयर करते हैं, और कुछ भी अच्छा काम करने के लिए जाते हैं ना तो हम प्रेयर से हमेशा स्टार्ट करते हैं। तो प्रेयर से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, ये हमारे फोकस को इम्प्रूव करता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। ये सब प्रेयर के बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज बैक पेन। अभी बैक पेन क्या है? ह्यूमन बैक जो है वो मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, डिस्क एंड बोन्स इन सब से बनी हुई है, और ये हम मिलकर हमारे बॉडी को सपोर्ट करते हैं। और हमारे स्पाइन में अगर स्पाइन के किसी भी पार्ट में अगर कुछ इंजरी होती है ना, तो उससे बैक पेन होता है। नाउ नेक्स्ट इज सिम्टम्स ऑफ बैक पेन। अभी बैक पेन के सिम्टम्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। अगर हम कुछ मतलब कौन सी भी चीज हम अगर लिफ्ट कर रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं, तो उस उठाते समय अगर हमें कुछ पेन होता है तो एक बैक पेन का सिम्टम है। फिर हम स्टैंडिंग में है, सिटिंग में है, रेस्ट कर रहे हैं, तभी हमें अगर पेन होता है तो वो भी एक बैक पेन का सिम्टम है। फिर जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं तो कभी कभी क्या होता है हमारे बैक स्टिफ हो जाती है, तो उसके बाद जैसे हम धीरे धीरे जैसे हमारे डेली एक्टिविटी जो रहते हैं वो करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारा जो पेन है वो कम कम होते जाता है, तो वो भी बैक पेन का सिम्टम ही है। और अगर आपको बैक पेन के साथ मतलब आपके बैक पेन के साथ अगर आपका पेन बटक्स की तरफ, लेग की तरफ जा रहा है या फिर बॉडी के दूसरे पार्ट में जा रहा है, तो भी तो आपको मतलब वो भी एक सिम्टम है बैक पेन का। अभी हमें डॉक्टर के पास कब विजिट करना है? तो अगर आपका पेन कंटिन्यूस 1 वीक से ज्यादा कंटिन्यूस चले जा रहा है, कम नहीं हो रहा है रेस्ट करने के बाद भी, तो हमें डॉक्टर के पास दिखाना है। बहुत बार हम क्या करते हैं मतलब इग्नोर करते हैं, तो मतलब हाँ, तो हमें इग्नोर नहीं करना है। जैसे आपको पता चलता है कि रेस्ट करने के बाद भी कम नहीं हो रहा है 1-2 वीक के बाद, तो हमें डॉक्टर के पास जाना है। फिर आपके लेग में नर्वनेस जैसे फील हो रहा है, पेन हो रहा है, वीकनेस फील हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। और जैसे हम कभी अचानक से गिर जाते हैं तो उसके बाद भी हमें बैक पेन होता है, तो भी हमें डॉक्टर के पास दिखाना है। फिर नमनेस जैसे फीलिंग हो रहा है, टिंगलिंग टिंगलिंग है, तो हमें डॉक्टर को दिखाना है। और जैसे फीवर, अभी बैक पेन के साथ अगर आपको फीवर आ रहा है ना, तो तभी भी हमें डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि वो भी एक सिम्टम है जो फीवर के मतलब जरिए से आपको शो करता है। नाउ नेक्स्ट इज स्पाइन एनाटॉमी। अभी हम स्पाइन के एनाटॉमी को देख लेते हैं कि क्या मतलब स्पाइन हमारा जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो हमारा जो स्कल है, स्कल के बेस से हमारा स्पाइन स्टार्ट होता है और टेलबोन तक एंड होता है। और हाँ, मतलब नेक के नीचे से स्टार्ट होता है और लोअर बैक तक हमारा स्पाइन जाता है। ये हमारी स्पाइन की पोजीशन है। अभी हम देखेंगे कि स्पाइन कौन कौन से सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। तो हमारा जो स्पाइन है वो 33 वर्टिब्रा से बना हुआ है। तो इस स्पाइन जो है वो 5 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो पहला है सर्वाइकल रीजन, फिर उसके बाद है थोरासिक रीजन, फिर आता है लंबर स्पाइन, फिर सैक्रल एंड कॉर्टेक्स। अभी हम हर एक को जान लेते हैं कि सर्वाइकल स्पाइन क्या है। तो सर्वाइकल स्पाइन जो है हमारे स्पाइन के सबसे ऊपर का पार्ट है, मतलब हमारा जो नेक है ना उसके एग्जैक्टली पीछे ये जो है ना वो हमारा सर्वाइकल स्पाइन है। तो सर्वाइकल स्पाइन जो है
वो उसमें 7 वर्टिब्रा है। अभी वर्टिब्रा मतलब हमारे बोन्स, तो ये C1 से लेके C1 से स्टार्ट होते हैं और C7 तक होते हैं सर्वाइकल स्पाइन। और ये एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो सर्वाइकल स्पाइन जो है ना वो अंदर की तरफ सी शेप बना रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो सी शेप बनाता है इसको लॉर्डोटिक कर्व कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है थोरासिक स्पाइन। थोरासिक स्पाइन मतलब हमारा मिडल बैक। तो ये स्पाइन में जो है ना थोरासिक रीजन में 12 वर्टिब्रा होते हैं जो T1 से लेके T12 तक होते हैं। और हमारे रिब केज के एग्जैक्टली पीछे थोरासिक स्पाइन होता है। वो जो थोरासिक रीजन है वो एग्जैक्टली पीछे होता है रिब केज के। तो इसमें इसमें 12 वर्टिब्राज है और ये हमारे स्पाइन का बाहर की तरफ सी शेप बनाता है। तो इसे हम काइफोटिक कर्व कहेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे काइफोटिक कर्व हम उसे कहेंगे। नाउ नेक्स्ट है लंबर स्पाइन। लंबर स्पाइन मतलब हमारा लोअर बैक पे, लोअर बैक। तो हमारे स्टमक के एग्जैक्टली पीछे लंबर स्पाइन है, लंबर रीजन है। तो इसमें 5 वर्टिब्रा है L1 से लेके L5 तक। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो ग्रीन कलर में है ना, मैंने L1 से L5 तक के लंबर स्पाइन है। और ये भी हमारे स्पाइन का जो मतलब स्पाइन अंदर की तरफ सी शेप बनाता है, इसे भी लॉर्डोटिक कर्व कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है सैक्रम एंड कॉकेक्स। सैक्रम जो है सैक्रम जो है वो ट्रायंगल शेप से बना हुआ है और इसमें 5 वर्टिब्रा है S1 से लेके S5 तक। और ये ना जॉइन बोन है, ये सेपरेटेड बोन नहीं, एक दूसरे से ज्वाइन करके है बने हुए हैं सैक्रम। नेक्स्ट है कॉकेक्स। कॉकेक्स मतलब हमारा टेलबोन, जो स्पाइन का सबसे लास्ट का पार्ट है, जिसे हम ज्याला मराठीमध्ये माकड हाड पण म्हटलं जातं। तो ये भी फ्यूज बोन है। अभी हम देखते हैं कि स्पाइन का फंक्शंस क्या है, क्यों हमारा स्पाइन इतना इम्पोर्टेंट है। तो स्पाइन हमारे बॉडी को स्पाइन हमारे बॉडी पोस्चर को सपोर्ट देता है। फिर हमारे बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है और हमें मूव करने के लिए वो मतलब हम जो मूव करते हैं वो स्पाइन की वजह से हम मूव करते हैं। जैसे हम डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटी का मतलब जो कुछ हम करते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, और जो हम राइट साइड टर्न, लेफ्ट साइड टर्न, ट्विस्टिंग जो कुछ करते हैं, वॉकिंग करते हैं, ये सब स्पाइन की वजह से पॉसिबल होता है। और ये पिक्चर में आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ये जो हमारा स्पाइन है ना उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है ना वो वहां से नर्व्स निकल रहे हैं। तो ये नर्व्स जो है ये हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक हर एक पार्ट को कनेक्टेड है। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से नर्व्स निकल रहे हैं, ये आईज को कनेक्टेड है, फिर ये हार्ट को है, ये लंग्स को है, ये स्टमक को है। जैसे हर एक बॉडी पार्ट मतलब ऑर्गन को कनेक्टेड है हमारे नर्व्स। तो इसलिए हमें हमारे स्पाइन को हेल्दी रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम कब रख सकते हैं स्पाइन को हेल्दी? जब भी हम कुछ मूवमेंट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तभी हमारा स्पाइन हेल्दी रह सकता है। और स्पाइन हेल्दी रहेगा तो हमारे ऑर्गन्स भी हेल्दी रहेंगे। नाउ नेक्स्ट है स्पाइन की मूवमेंट्स। अभी हमारा स्पाइन जो है वो 6 प्रकार से मूव करता है। जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग हुआ, जो हम फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास करते हैं वो फॉरवर्ड बेंडिंग। फिर बैकवर्ड बेंडिंग, फिर राइट साइड टर्निंग, राइट साइड टर्निंग, लेफ्ट साइड टर्निंग, फिर राइट साइड बेंडिंग, लेफ्ट साइड बेंडिंग। ये 6 तरीके से हमारा स्पाइन मूव करता है। और हम आगे ना ये 4 दिनों में ना हम यही आसनास करने वाले, जो हमारे स्पाइन को ज्यादा से ज्यादा मूव करते हैं, फ्लेक्सिबल बनाते हैं। हम फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास देखेंगे, फिर बैकवर्ड बेंडिंग आसनास देखेंगे, टर्निंग, ट्विस्टिंग सब देखने वाले। नाउ नेक्स्ट है डिस्क। अभी डिस्क क्या है? डिस्क जो है हमारे मतलब स्पाइन में जो हमारे बोन्स है
उसको वर्टिब्रा कहा जाता है। तो वो दोनों वर्टिब्रा, जैसे ये अभी वर्टिब्रा है, एक मिनट, अभी ये वर्टिब्रा है दोनों, तो ये दोनों वर्टिब्रा के बीच में जो होता है ना वो डिस्क है, ये दोनों बोन्स के बीच में। तो ये डिस्क क्या काम करता है, एक कुशन का काम करता है और एक कार्टिलेज से बना हुआ होता है। और ये क्या जैसे हम मतलब चलते हैं या फिर जंप करते हैं, तो क्या होता है, हम जंप करने के बाद कैसे फोर्स जर्क हमें हमारे स्पाइन को मिलता है, तो ये डिस्क उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसको शॉक एब्जॉर्बर भी कहा गया है। फिर डिस्क जो है ना, ये जेल लाइक फ्लूइड से बना हुआ है और ये फ्लूइड ही हमें हमारे स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करता है। नाउ ये डिस्क को भी हाँ, डिस्क को इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहा गया है। देयर आर अ टोटल ऑफ 23 वर्टिब्रल डिस्क इन द स्पाइनल कॉलम। और क्या होता है ना, जैसे डिस्क के वजह से क्या होता है, हमारे जो दो बोन्स है ना वो एक दूसरे के ऊपर घिसते नहीं है। नहीं तो क्या होता है, अगर डिस्क नहीं होती ना तो वो दोनों बोन्स एक दूसरे के ऊपर मतलब घिसते, इसलिए ये डिस्क दोनों बोन्स के बीच में बनी हुई है। नाउ नेक्स्ट है अभी ये जो डिस्क के टाइप्स है वो हम देखते हैं यहाँ पे। एक है नॉर्मल डिस्क, यहाँ पे आपको एक मतलब हेल्दी डिस्क है ये, जिसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको पहले ये जो है ना पहले इसमें दिख रहा है। फिर नेक्स्ट है डीजेनरेटिव डिस्क, इसमें क्या होता है, डीजेनरेशन हो रहा है यहाँ पे, मतलब डिस्क थोड़ा थोड़ा अभी खराब होने चालू हो गई है। और थर्ड जो है बल्जिंग डिस्क, इसमें क्या होता है, जो डिस्क के अंदर का जो फ्लूइड है ना वो थोड़ा सा बाहर आ चुका है यहाँ पे। फिर उसके बाद का जो कंडीशन है, मतलब उसके आगे का हर्निएटेड डिस्क, जिसे हम स्लिप डिस्क भी कहते हैं, उसमें क्या होता है, मतलब बहुत ज्यादा फ्लूइड बाहर आ चुका है डिस्क का। तो ये क्या करता है, ये बाहर आने के बाद जो नर्व्स है ना उसको कंप्रेस करता है, तो उसकी वजह से हमें बैक पेन होता है, क्योंकि यहाँ पे नर्व कंप्रेस हो रही है ये स्लिप डिस्क की वजह से, तो हमें इसके वजह से बैक पेन चालू होता है। फिर उसके बाद है थिनिंग डिस्क। थिनिंग डिस्क में क्या होता है, डिस्क ना थिन हो जाती है, हाँ डिस्क बहुत यहाँ पे डिस्क थिन हो गई है, पतली हो जाती है। तो फिर थिन डिस्क होने के बाद होने के कारण क्या होता है, दोनों वर्टिब्रा एक दूसरे के ऊपर घिसने लगते हैं, तो हमें बैक पेन चालू होता है। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बैक पेन। अभी बैक पेन के टाइप्स कौन कौन से हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर एंड सैक्रल। मैं एक बार आपको ये दिखाती हूँ, इसको मतलब देख के अच्छे से मुझे समझ में आएगा। सर्वाइकल स्पाइन जो है ना, अगर आपके सर्वाइकल रीजन में किधर भी कुछ प्रॉब्लम होता है ना तो आपको नेक पेन है, तो हम उसको नेक पेन का नाम देते हैं। और फिर थोरैसिक रीजन में आपके किधर भी आपको कुछ प्रॉब्लम होता है थोरैसिक रीजन में, तो हम उसे अपर बैक पेन या फिर मिडल बैक पेन कहेंगे। फिर लंबर एंड सैक्रम, ये दोनों में अगर आपको किसी जगह पे ये दोनों में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो उसे हम लोअर बैक पेन कहते हैं। वही हमने यहाँ पे दिया है, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर एंड सैक्रल। नाउ नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ बैक पेन। अभी बैक पेन के बहुत सारे कॉजेस है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिखाई है। एक है साइटिका। साइटिका के वजह से भी बैक पेन होता है, जो हम लोग आगे जाके देखने वाले कि साइटिका क्या होता है। फिर उसके बाद है बल्जिंग एंड रप्चर डिस्क, जो अभी हमने देखा प्रीवियस स्लाइड में कि डिस्क खराब जो ये होता है, स्लिप डिस्क जो होता है वो। फिर उस स्पाइन ओस्टियोआर्थराइटिस, जो हम वो डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं कि क्या है वो। स्पाइनल स्टेनोसिस भी देखने वाले हैं। ओस्टियोपोरोसिस की वजह से भी बैक पेन होता है, वो भी हम देखेंगे। मसल स्प्रेन हो गया तो भी बैक पेन होता है। नाउ नेक्स्ट है हाँ, हमारा पुअर सिटिंग पोस्चर। जैसे हम मतलब बहुत देर तक लैपटॉप के सामने काम करते हैं, कैमरा मोबाइल देखते हैं, तो जैसे हमारा पोस्चर पूरा मतलब आगे झुका हुआ रहता है, तो उसके वजह से भी बैक पेन होता है।
फिर अगर हम कुछ हेवी सामान लिफ्ट कर रहे हैं तो उसके वजह से भी हमें बैक पेन होता है। फिर अगर हम अचानक कभी मतलब गिर गए तो उसके बाद भी हमें बैक पेन चालू होता है। देन फ्रीक्वेंट बेंडिंग फॉरवर्ड अभी हमने देखा। फिर है ओबेसिटी। ओबेसिटी भी एक मेन कॉज है बैक पेन का। तो हाँ, नेक्स्ट है अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, पुअर पोस्चर, वो भी देखा हमने। हाँ, और लॉन्ग वर्किंग आवर्स व्हाइल सिटिंग इन चेयर्स एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। अभी आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, मतलब आपके स्पाइन का कुछ मूवमेंट नहीं है, तो आपको मतलब बैक पेन नहीं, बहुत सभी डिसीज आपको मतलब वहां से स्टार्ट होते हैं। फिर मूवमेंट एंड पोस्चर। अभी पोस्चर अभी हमने देखा कि बहुत बार हमारा जो पोस्चर रहता है जब हम बैठते हैं ना, तो बहुत बार हम हमारा मतलब हंस निकला हुआ रहता है, तो हमें प्रॉपर पोस्चर में बैठना चाहिए। ऐसे इंटेंशनली हमें मतलब वैसे ही प्रैक्टिस करने के लिए वैसे हमें बैठना है स्टार्टिंग में। फिर अगर हम वॉक कर रहे हैं स्टैंडिंग में, तभी भी हमें हमारा पोस्चर करेक्ट करके हमें खड़े होना है। तो पोस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज साइटिका। अभी साइटिका क्या है? साइटिका जो है ये एक यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है, एक सियाटिक नर्व है जो लोअर बैक से स्टार्ट होती है और हमारे लेग के नीचे तक जाती है। तो क्या होता है, किसी भी रीजन के वजह से कुछ भी रीजन हो गया तो वो जो नर्व है वो अगर कंप्रेस्ड हो गई, इंजर्ड हो गई, मतलब कुछ इरिटेट हो गई, तो हमें पेन चालू होता है। तो उसी पेन को हम साइटिका कहते हैं। तो हमारे साइटिका की वजह से क्या होता है ना, हमारे लेग में वीकनेस आता है, नमनेस जैसे फील होता है, टिंगलिंग होता है। ये सब साइटिका के लक्षण है। फिर हाँ, साइटिका का जो पेन है ना, वो बटक्स के मतलब लोअर बैक से स्टार्ट होके वो बटक्स की तरफ जाके फिर नीचे पैर के नीचे तक जाता है। नेक्स्ट है स्पाइनल स्टेनोसिस। अब इस स्पाइनल स्टेनोसिस में क्या होता है, ये पिक्चर में आपको पिक्चर को देख के आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये स्पाइनल कैनल है, यहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो निकलती है। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये यहाँ पे मतलब कंप्रेस हो रही है, आपको दिख रहा है। और ये जो पोर्शन है कैसे, मतलब इसको स्पेस है स्पाइनल कॉर्ड को, और इधर कैसे नैरो हो गया है बहुत। तो मतलब किसी भी रीजन की वजह से, या स्लिप डिस्क की वजह से, या फिर कौन से भी कारण की वजह से ये जो स्पाइनल कॉर्ड है प्रेस हुई है, तो उसके वजह से भी तो उसको स्पाइनल स्टेनोसिस कहा जाता है। और ये जो है ना स्पाइनल स्टेनोसिस, ये ज्यादातर लोअर बैक और नेक में आपको दिखाई देता है। नाउ नेक्स्ट इज स्पाइनल ओस्टियोआर्थराइटिस। अभी अर्थराइटिस तो हम सबको पता है कि जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होता है। तो इधर स्पाइनल ओस्टियोआर्थराइटिस में भी हमारे स्पाइन में इन्फ्लेमेशन होता है। यहाँ पे आप ऊपर के पिक्चर में देख सकते हो कि हमारा नॉर्मल स्पाइन है, और नीचे जो है ना वो हमारे दोनों वर्टिब्रा के बीच में जो दो बोन्स है उसके बीच में आपको रेड रेड दिखाई दे रहा है। ये जॉइंट के बीच में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो इसे हम स्पाइनल ओस्टियोआर्थराइटिस कहेंगे। तो ये हमारे स्पाइन के कौन से भी सेक्शन को अफेक्ट करता है, लेकिन ज्यादातर ना क्या होता है, नेक में और लोअर बैक में ये ज्यादा दिखाई देता है स्पाइनल ओस्टियोआर्थराइटिस। आपको ये दोनों डायग्राम को देख के अच्छे से समझ में आएगा कि पहला जो है ऊपर का वो बहुत हेल्दी स्पाइन है, और नीचे का जो है वो दोनों बोन के बीच में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं ओस्टियोपोरोसिस। अभी ओस्टियोपोरोसिस मतलब हमारे जो बोन्स है वो वीक हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वर्टिब्रा जो है हमारा कमजोर हो गया है, ब्रिटल हो गया है, तो इसे हम ओस्टियोपोरोसिस कहेंगे। और ये ओस्टियोपोरोसिस ना ज्यादातर मतलब कैल्शियम कम होने की वजह से, या फिर एज जैसे जैसे बढ़ता जाता है ना, तभी ओस्टियोपोरोसिस का मतलब तभी दिखाई देता है।
अभी तक हमने देखा कि बैक पेन क्या है, बैक पेन के सिम्टम्स देखे, फिर बैक पेन के कॉजेज देखे। उसके बाद हमने स्पाइन के बारे में देखा कि स्पाइन की कहाँ पे लोकेटेड है, फिर उसका मूवमेंट देखा। उसके बाद हम देखेंगे योगिक प्रैक्टिसेस। योगिक प्रैक्टिसेस में ना हम सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम देखेंगे। सूक्ष्म व्यायाम मतलब हमारे वार्म अप, जो हमारा वार्म अप एक्सरसाइज होता है ना, उसको हम सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। तो जैसे सूक्ष्म व्यायाम का हम अभी बेनिफिट देख लेते हैं। ये हमारे जो हमारा जॉइंट है, जॉइंट में जो स्टिफनेस रहता है ना, उसको कम करता है। फिर एडवांस आसना को हमारे बॉडी को प्रिपेयर करता है एडवांस आसन के लिए। फिर हमारे मतलब ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, मसल रिलैक्स करता है, जॉइंट्स एंड मसल को स्ट्रेंथन करता है। और सभी एज ग्रुप वाले से परफॉर्म कर सकते हैं सूक्ष्म व्यायाम को। जो ओल्ड एज वाले हैं, सिक पीपल है, वो भी सूक्ष्म व्यायाम को कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे नेक मूवमेंट है, ग्रीवा शक्ति विकास है। यहाँ पे हम नेक को मैंने मतलब नेक का मूवमेंट है, अप किया है, डाउन किया है, राइट लेफ्ट, ये सब मूवमेंट हम आने वाले 4 दिनों में करने वाले हैं। फिर ट्रंक मूवमेंट है, ट्रंक मूवमेंट भी हम करने वाले हैं। जैसे स्पाइन को हमने यहाँ पे राइट साइड बेंड किया, लेफ्ट साइड बेंड किया, फिर बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग ना, ये भी स्पाइनल ट्विस्टिंग हुआ, एंकल रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, ये सब हम परफॉर्म करने वाले हैं। अभी आसना के बेनिफिट्स देख लेते हैं हम। ये ओवरऑल आसना के बेनिफिट्स है। आसन करने से क्या होता है, हमारा पोस्चर इम्प्रूव होता है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, फिर हमारे बैक पेन को कम करता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, बोन हेल्थ इम्प्रूव होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, स्ट्रेस एंजाइटी को कम करता है, फिर डाइजेशन इम्प्रूव करता है, हार्ट फंक्शनिंग के लिए भी हार्ट फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है आसन। अब ये कुछ आसन है, जैसे ताड़ासन। ताड़ासन में क्या हो रहा है, हमारा स्पाइन पूरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो रहा है, तो ये भी बैक पेन के लिए बहुत बेनिफिशियल आसन है। फिर हस्तोत्तानासन है, कटी चक्रासन है, इसमें स्पाइन ट्विस्ट हो रहा है कटी चक्रासन में, ये सब हम करने वाले हैं। फिर सिटिंग आसन में दंडासन करेंगे, वज्रासन, बद्ध कोणासन, फिर वक्रासन, पर्वतासन, गोमुखासन, अर्ध उष्ट्रासन, भूनमनासन, शशांकासन। अभी कैटन काउ पोज। कैटन काउ पोज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको बैक पेन ही नहीं है, डेली ये आसन आपको परफॉर्म करना ही है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, हमारे स्पाइन की मूवमेंट होती है और स्पाइन फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट है मकरासन। मकरासन के 3 वेरिएशंस देखेंगे हम। फिर है भुजंगासन, टीवी पोज, शलभासन, प्लैंक पोज, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतु बंदासन, स्पाइनल ट्विस्टिंग। स्पाइनल ट्विस्टिंग में भी हम वेरिएशंस देखने वाले हैं। नेक्स्ट सुप्त बद्ध कोणासन। अभी सुप्त बद्ध कोणासन है ना, हम ये पिलो के साथ परफॉर्म करने वाले हैं। ये भी बैक पेन के लिए, बैक पेन को रिलीफ देने के लिए बहुत अच्छा आसन है। फिर अर्ध हलासन करेंगे, वॉल सपोर्टेड। नेक्स्ट सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जो है ना, हम मॉडिफाइड सूर्य नमस्कार करने वाले। जिनको बैक पेन है उनके लिए मॉडिफाइड करेंगे, और जिनको बैक पेन नहीं है उनके लिए भी हम नॉर्मल सूर्य नमस्कार परफॉर्म करने वाले हैं, ताकि वो अपने बैक, जिनको बैक पेन नहीं है वो फ्यूचर में मतलब अपने बैक पेन को बच सके। नेक्स्ट है सूर्य नमस्कार। उसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। सूर्य नमस्कार से क्या होता है, हमारा पोस्चर इंप्रूव होता है, वेट लॉस होता है। अभी हमने कॉजेस ऑफ बैक पेन में देखा कि ओबेसिटी वो भी एक मेन कॉज है बैक पेन का। तो सूर्य नमस्कार हेल्प करता है वेट लॉस करने में, फ्लेक्सिबिलिटी को एनहांस करता है, एंजाइटी को रिड्यूस करता है,
डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और आपके पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। फिर आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, मसल स्ट्रेंथ आपकी अच्छी हो जाती है, स्लीप क्वालिटी आपकी एनहांस होती है। फिर आपके हार्ट को स्ट्रेंथन करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। प्राणायाम। अभी प्राणायाम क्या है? प्राणायाम जो है ना, ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, प्राण और आयाम। प्राण मतलब लाइफ फोर्स, जो वाइटल एनर्जी है वो, और आयाम मतलब कंट्रोल करना। तो हम हमारे ब्रीदिंग के ऊपर ब्रीदिंग को रेगुलेट करके हम हमारे माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी आपको सबको पता है कि 99% जो डिसीज है वो साइकोसोमेटिक डिसीज है। तो हम प्राणायाम करके हमारे मन के ऊपर कंट्रोल करके हमारे मन को शांत कर सकते हैं। फिर मतलब बैक पेन भी और बाकी सारे जो प्रॉब्लम्स है वो भी हमारे बहुत सारे कम हो जाते हैं। अभी प्राणायाम में 3 फेजेस है। एक है पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक मतलब इनहेलेशन, जो हम श्वास को अंदर लेते हैं उसे हम पूरक कहते हैं। फिर रिटेंशन, ब्रेथ को जब हम होल्ड करके रखते हैं ना तब हम कहते हैं कुंभक। और एक्सलेशन, जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो उसे कहा जाता है रेचक। और प्राणायाम ये तो है एक कंफर्टेबल पोस्चर में किया जाता है, सीटेड पोस्चर में। अभी प्राणायाम के हम बेनिफिट्स देख लेते हैं। ओवरऑल प्राणायाम के बेनिफिट्स हैं यहाँ पे। प्राणायाम करने से हमारा मन शांत होता है, एंजाइटी स्ट्रेस कम होता है, हमारी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है। फिर हमारे जो नाड़ीज है उसको क्लीन करता है प्राणायाम। फिर स्ट्रेस को कम करता है, हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, कुंडलिनी को जागरूक करता है। फिर हमारा फोकस कंसंट्रेशन बढ़ता है और हम प्रेजेंट मोमेंट में मतलब प्राणायाम करने से रह पाते प्रेजेंट मोमेंट में। फिर इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और ये हमारे मतलब इट इफेक्ट्स ऑन ऑल डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। अभी हम प्राणायाम में ना अनुलोम विलोम करने वाले हैं, फिर भ्रामरी प्राणायाम देखेंगे, फिर उज्जयी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, ये सब हम प्राणायाम देखने वाले हैं कल से। अभी अनुलोम विलोम के बेनिफिट्स क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं कि ये एंजाइटी लेवल को रिड्यूस करता है अनुलोम विलोम, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, enhance the mental well-being, improves function of heart। फिर हमारे दोषास जो है 3 दोष है हमारे, वात दोष, पित्त दोष एंड कफ दोष, उसको ये तीनों दोषों को बैलेंस करता है। नेक्स्ट देखेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अभी भ्रामरी प्राणायाम जो है ना, यहाँ पे षण्मुखी मुद्रा लगा के मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया है। भ्रामरी प्राणायाम ये हमारे एंगर को कम करता है, स्ट्रेस एंजाइटी को कम करता है, हमारे वोकल कॉर्ड को स्ट्रेंथन करता है, हाइपरटेंशन डिप्रेशन को क्योर करता है, कंसंट्रेशन मेमोरी को इम्प्रूव करता है, सपोर्ट इमोशनल बैलेंस। नेक्स्ट है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम जो है वो हम इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन हमारे थ्रोट से करते हैं। तो उज्जयी प्राणायाम के बेनिफिट्स देखते हैं कि ये डाइजेस्टिव फायर को स्टिमुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, इंसोमेनिया जिनको नींद की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है उज्जयी प्राणायाम। अभी मतलब हमें 7 से 8 घंटे तक अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है, उसके वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फेस करने पड़ते हैं। फिर हम स्ट्रेस एंजाइटी, फिर ये उज्जयी प्राणायाम स्ट्रेस एंजाइटी को मैनेज करता है, माइग्रेन में इफेक्टिव है। फिर ये इंक्रीज रेस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। नेक्स्ट है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में हम माउथ से श्वास अंदर लेते हैं और नॉस्ट्रिल से बाहर निकालते हैं। तो ये हमारे शीतली प्राणायाम क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को कूल डाउन करता है, हमारे माइंड को शांत करता है। और जिनको भी ना हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो हाइपर एसिडिटी को रिड्यूस करता है। फिर डेंटल प्रॉब्लम में इफेक्टिव है, डिप्रेशन में बेनिफिशियल है। नाउ नेक्स्ट है सेक्शनल ब्रीथिंग।
अभी सेक्शनल ब्रीदिंग जो है वो हमारे ब्रीदिंग पैटर्न को करेक्ट करता है। हम कैसे करेक्ट वे से ब्रीदिंग करें वो हमें सेक्शनल ब्रीदिंग से पता चलता है। फिर ये हमारे लंग्स की कैपेसिटी को एनहांस करता है, हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल है उसको इंक्रीज करता है। फिर फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। इट फिल्स ऑल एरियाज ऑफ लंग्स विथ ऑक्सीजन। ये हमारे लंग्स को हेल्दी रखता है। नाउ नेक्स्ट है मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन। अभी जितना हमें पॉसिबल होगा ना उतना हम ये 4 दिनों में कवर करने वाले हैं। बॉडी अवेयरनेस, ब्रेथ अवेयरनेस हुआ, योग निद्रा, ओम मेडिटेशन हुआ, अंतर होना। ये कुछ मेडिटेशन के टाइप से यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, वो सब जब जितने हमें पॉसिबल होंगे हम कवर करेंगे। फिर अभी उसके बेनिफिट देख लेते हैं। मेडिटेशन और रिलैक्सेशन से हमारा स्ट्रेस कम होता है। फिर ये नेगेटिव फीलिंग्स को कम करता है, हमारे फोकस एंड कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। इट क्लियर्स माइंड एंड इंक्रीज क्रिएटिविटी। हमारा मतलब जो क्रिएटिविटी है उसको हमारी क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है। फिर हमारे इमोशन को रेगुलेट करता है। हमारे इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ इम्यून सिस्टम और हमें पेशेंट बनाने में बहुत हेल्प करता है। पेशेंस बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है। ये था आज के बैक पेन का। इसके अलावा भी बहुत मतलब और कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जैसे अभी हमने देखा बैक पेन के बारे में हमने देखा, लेकिन हमारा जो डाइट है, हमें ना कैल्शियम रिच डाइट लेना है। और विटामिन डी भी हमें मतलब जो उसका बेस्ट सोर्स है सनलाइट। तो हमें सुबह की धूप लेनी है। फिर उसके बाद हमारा पोस्चर के ऊपर हमें ध्यान देना है बहुत। जो हम बैठे हैं, खड़े हुए हैं, हमारा प्रॉपर पोस्चर होना चाहिए। फिर एक्सरसाइज एक्सरसाइज ना हमें डेली करनी है। मतलब आपको डेली अगर नहीं, मतलब डेली करना ही चाहिए। अगर डेली नहीं पॉसिबल होता तो आप वीक में 3 डेज करो, क्योंकि ना उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे कम होते हैं। और हाँ, और एक चीज है जो अभी हमारा टाइम है 4 to 5। तो आपको ना कल से मतलब 2 से 3 घंटा पहले आपको आपका खाना खा लेना है। तो उसके बाद मतलब एटलीस्ट उतना तो गैप होना चाहिए योगा प्रैक्टिस करने से पहले। और उसके बाद आपको हाफ एन आवर कुछ खाना नहीं है और बात नहीं लेना है। बस इतना था जो आप मतलब ध्यान में रख सकते हो बैक पेन के ऊपर। और किसी को कुछ डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो मुझे। मैम मेरा खाना ही इतना लेट हो तो मैं कैसे करूँ वही सोच रही हूँ कभी खाते एक्चुअली। हो आप? कभी खाते हो? अभी जस्ट आपका ये शुरू हो गया, 1 घंटा हुआ मेरा खाना खाते, 1 आवर ही हुआ। तो क्यों मतलब इतना लेट क्यों खाते हो फिर? कुछ एक्चुअली क्या होता है मैम, मेरे को सुबह से 6 बजे एक क्लास लेती हूँ, फिर बाद में अभी 9:30 एक जगह ज्वाइन किया, फिर बाद में 10:30 मेरा गुरुजी का वो क्लास वो ज्वाइन करती हूँ। तो अभी तो मैम का था, अभी बिफोर जो मैम बात की उनका था, उनका अभी नहीं है, तो 12-15 तक उनका रहता है। बाद में मैं खाना बनाना फिर खाना, तो वो काम भी रहता है, तो इसलिए लेट हो जाते हैं। तो आपको जल्दी तो खाना पड़ेगा ही ना। और ये टाइम भी कितना लेट है। मतलब आप हाँ योगा प्रैक्टिस करो नहीं करो, लेकिन ये बहुत टाइम, मतलब बहुत ऑड टाइम पे खा रहे हो आप फिर। हाँ मैम, सुबह से मेरे को खाने को ही नहीं होता, वो 12 के बाद तभी मैं फ्रूट्स खाती हूँ, फ्रूट्स लेती हूँ, जूस लेती हूँ, स्मूदी लेती हूँ, बाद में ये खाना खाती हूँ। अच्छा, तो थोड़ा आप मतलब आपका लंच टाइमिंग थोड़ा पहले करे तो फिर। नहीं तो बहुत मुश्किल होता है, क्या ऊपर ये तो डाइजेस्ट नहीं होने से बहुत प्रॉब्लम होता है करने को।
हाँ वही, इसलिए मैंने बोला कि मतलब आपका स्टमक लाइट स्टमक होना चाहिए ना, तो फिर आप कुछ आसन वो सब कर पाओगे। इसलिए तो थोड़ा मतलब आपका जो है थोड़ा लंच करिए। Let's try 100%. हाँ बोलो ना शुक्ला जी, आप कुछ पूछ रहे हो? आपने हैंड रेज किया हुआ है। ओके, Beautiful explanation, Roshni. थैंक यू लक्ष्मी जी। Nice session. All the best. Nice session, Roshni ji. So I have posted feedback link and also a link for our upcoming workshops. Do try to register for those as well. We have one PCOS, PCOD already going on from 10 to 11 a.m. this week, apart from Roshni ji's evening 4 to 5 workshop. So if you find it beneficial, please join both the sessions and enjoy the asana practices from tomorrow onwards. So please do give us your feedback. It is for us to improve on our deliverables. Are there any questions? I have one question for रोशनी मैम। आप सारे, एक्चुअली मैं आईटी में वर्क करती हूँ, तो आप सारे सिटिंग मतलब बैक पेन के लिए सारे आसन्स कवर करने वाले हो? मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा ये सेशन? हाँ हाँ, मैं सारे आसन कवर करने वाली हूँ। ये 4 दिनों में मतलब जितना हो सकता है मैं सब हम करने वाले हैं। ओके ओके, थैंक यू। और चैट में सीमा जी ने फीडबैक लिंक फॉर्म भेजा है, तो प्लीज आप अपना फीडबैक दीजिए। मैडम जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। Madam, I would like to thank you from all participants to you because you have started the very good topic, back pain, which is most of the peoples, I think they will tell or they will not tell, or they will now feeling or they will feel later. At least 60% of the people, they are facing this issue. Yes, yes sir. Now, as I will like to suggest something, because suppose all participants we are here, we are interested in the back pain. So surely we are the struggling with the back issue, or we want to get it should not come to us. Okay. Now just I will like to tell first start from myself itself, because I have the issue in the L1 and L2. Renu madam knows very well, Siddhi also knows very well, because Jigna madam, because all we are the old colleagues. So because I am not able to do, means forward bending is not allowed to me. So I will like to just before, because today is our theory class, so every participant should tell if they have the issue, and that is to be avoided during our session. So we should get full benefit. It's instead of that, if we are learning and learning also, we get the our problem increased, so we will stop the joining the class. So it should not be there. This is the only my one point. So Okay sir. yes, if you think it is better, so it can be. I have told my problem. I have issue in L1 and L2. Okay, so sir. yes. So all other members, if they want, they can tell us, so that betterly Seema madam and Roshni madam, we will be able to guide us. And Renu madam, I will be joining the your class also, because I am having thyroid also. So Okay. Most welcome, sir. Most welcome. जैसे शुक्ला सर ने अभी बताया कि हमें बैक पेन है तो कंप्लीट फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करना है, तो हम हाफ फॉरवर्ड बेंडिंग ही करेंगे, और वैसे ही आसनास मैंने आगे सब मतलब ये किए हुए हैं। तो madam, this was my question, that every means what I have given hint, every member should tell that what is the issue they have, and according to that you will say that yes, you have not to do. Because as we learned in our classes, first we have to the contraindication, because otherwise our yoga is getting defamed. What is the main use, that अंतराय योग की अंतराय जो है उसमें मेन फर्स्ट क्या है कि हम
बिना पूरी जानकारी के करते हैं और फिर उसके बाद स्टॉप कर देते हैं, और फिर दूसरे को बोलेंगे भाई योग वोग नहीं करना, भाई बड़ा गड़बड़ होता है जो है. This is the thing. So that should not come with us in our group. So this was my only vision to अगर raise the hand and to tell my issue. This was अगर my किसी thing. को कुछ प्रॉब्लम रहेगा Okay. बैक पेन से रिलेटेड और कुछ, तो प्लीज वो मतलब बता सकते हो. हेलो मैम. मैम मुझे एक चीज पूछनी थी. दिस इज हाँ. प्रीति मैम. कि मैम जैसे शुक्ला सर ने बोला कि L1 L2 उनको प्रॉब्लम है तो वो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर सकते, लाइक फुल फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर सकते. लाइक अगर किसी को L4 L5 में प्रॉब्लम है तो क्या वो फुल बेंडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते? लाइक सुषमा मैम से, लाइक आई एम ऑल्सो लाइक स्टूडेंट, एंड सुषमा मैम ने बोला था कि जिसको भी लाइक बैक एक होता है या लोअर बैक पेन है, उन लोग को फुल फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना चाहिए. सूर्य नमस्कार का लाइक जैसे आपने बोला कि उनका दूसरा वेरिएशन रहता है, तो मैम क्या आप वो भी बताएंगे? पहली चीज तो ये, और मतलब दोनों में डिफरेंस होता है क्या? जो L4 और L5 में जो आप बोल रहे हो, हाँ, उनको फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करना है मेरे हिसाब से. तो लाइक हाफ भी नहीं कर सकते क्या वो? नहीं, या हाफ फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं हम. हाफ फॉरवर्ड बेंडिंग कर अच्छा. सकते हैं. और मैंने सूर्य नमस्कार के जो मॉडिफाइड सूर्य नमस्कार डाला ना, उसमें मैंने हाफ फॉरवर्ड बेंडिंग भी डाला. ओके. तो हम Okay. कंप्लीट फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करने वाले पूरे ये सेशन वो कैंप में. ओके. इट्स पर्टिकुलर फॉर द मतलब बैक पेन. यस. ओके मैम. और किसी को कुछ प्रॉब्लम मतलब कुछ शेयर करना है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो. ओके सर, मुझे नहीं लगता अभी किसी को मतलब कुछ अलग कुछ इशू है. It is very good for us because if our all members are the free from the disease, so we are the in very good position and they are following the yoga very well. What can I say? थैंक यू सर. थैंक यू एवरीवन. तो हम एंड करते हैं आज सेशन. Thank you, Roshni ji. Very nice session and information. थैंक यू रेलवे जी. थैंक यू. ये प्रेयर के साथ एंड करेंगे. Thank you, हाँ, ma'am. प्रेयर से एंड करते हैं. Thank you all. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. 3 Omkar chanting. Breathe in. Om. Breathe in. Om. Breathe in. Shanti, Shanti, Shanti. Rub your palms, cup your eyes, remove your hands, and gently open your eyes. Thank you everyone. कल हम यही टाइम पे मिलते हैं. Bye bye. Have a nice day. Bye bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you, ma'am.